নমস্কাৰ টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু প্ৰথমতে অসমবাসীক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো কিয়নো অসমৰ এখন আগশাৰী কোচিং ইনষ্টিটিউট লালন্স কোচিং অসমবাসীয়ে চিনি পায় আৰু সেই লালন্স কোচিং এটা বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে কিয়নো তাত অধ্যয়ন কৰা এগৰাকী ছাত্ৰ আৰোহণ হাজৰিকা যি আৰোহণ হাজৰিকাই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ পৰা গৈ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা বিশেষ পৰীক্ষাত তেওঁ উজ্জ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু হয়তো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোচিং প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অসমৰ একমাত্ৰ ছাত্ৰ হ'ব আৰোহণ হাজৰিকা যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্জ্বলি উঠিছে আৰু আৰোহণে দুটাকৈ পৰীক্ষাতে উজ্জ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে IOQC আৰু IOQP এই দুটাকৈ পৰীক্ষাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰোহণ হাজৰিকাই আৰু সেই লালন্স কোচিঙৰ আমাৰ হাত লগত আজি অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সফলতাৰ কথা পাতিম প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো আমাৰ সৈতে আছে লালন কুমাৰ তেওঁ লালন্স কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰিচালন সঞ্চালক মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আৰু আমাৰ লগত আছে অক্ষয় কুমাৰ ফিজিক্সৰ তেওঁ মুৰব্বী অধ্যাপক লালন্স কোচিং চেণ্টাৰ আৰু তেওঁলোকে সেই আৰোহণক গাইড কৰি ৰাখিছিল দীৰ্ঘ সময় ধৰি আৰু সেই আৰোহণে আজি ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে তেওঁ ৰাজ্যখনৰ বাবে নাম উজ্বলাইছে আৰু দেশৰ ভিতৰতে এটা স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমতে আৰোহণক আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো আৰু লালন্স কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা গৈ কিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰোহণ সেয়া আমি কথা পাতিম কিন্তু এইগৰাকী হৈছে আৰোহণ এই আৰোহণ হাজৰিকাই লালন্স কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ এই কোচিং চেণ্টাৰৰ গাইডৰ জৰিয়তে তেওঁ দেশৰ ভিতৰত উজ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ সবাতোকৈ এটা ভাল খবৰ বহু কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে IOQC আৰু IOQP অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান অলিম্পিয়াড কোৱালিফায়াৰ ইন কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্স এই দুটা পৰীক্ষাত অসমৰ পৰা বহু কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হয় বা দেশৰ ভিতৰতে কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হয় আৰু তাৰ ভিতৰতে এগৰাকী আৰোহণ লালন্স কোচিংৰ পৰা গৈ তেওঁ ইতিমধ্যে উজ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি দৃষ্টান্ত দেখুৱালো আৰু এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ লালন্স কোচিঙৰ আমাৰ হাতত লগত পৰিচালন সঞ্চালক আছে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আজি নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু আৰোহণে এটা ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিছে কি ক'ব আৰোহণৰ সন্দৰ্ভত आरोहण हजारिका का रिजल्ट से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं लास्ट 4 ईयर से वो हम लोग के पास क्लास 9 से क्लास कर रहा था और हम लोग उसको शुरुआत से मतलब गाइड किए और आज बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे जैसे KVY का किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का एग्ज़ाम हुआ वो क्लास 11 में भी क्वालिफाई किया क्लास 12 में भी क्वालिफाई किया आज हम लोग उसको फेलिसिटेट किए बेसिकली जो IOQC और IOQP ये बहुत ही अनकॉमन नेम है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तो ये नेशनल सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले बिफोर 3 मंथ्स इसका स्टेट रैंक लिस्ट आया था स्टेट रैंक लिस्ट में टॉप 1% में ये स्टूडेंट आया था उसके बाद कुछ दिन 2-3 दिन पहले अभी उसका नेशनल टॉपर्स का लिस्ट आया नेशनल टॉपर्स एंड ही वाज नेशनल टॉपर इन IOQC एंड IOQP जिसमें अबाउट 100 स्टूडेंट फिजिक्स में और 100 स्टूडेंट केमिस्ट्री में सिलेक्ट हुए असम से मात्र एक सिंगल स्टूडेंट है जो पूरे असम का नाम रोशन किया है पूरे इंडिया में तो ये बहुत ही बड़ा बात है और हम लोग सारे सोसाइटी को जितने भी लोग हैं इसको मतलब प्रमोट करना चाहिए ऐसे टैलेंट को और ऐसे रिजल्ट को हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि हम लोग सिर्फ क्लास 10 में जो अच्छा किया टॉप 10 रैंक ले आया क्लास 12 में जो टॉप 10 रैंक ले आया उसको हम लोग बस प्रमोट करते हैं बट ऐसा स्टूडेंट जो कि मतलब नेशनल लेवल एग्जाम में पूरे असम का नाम रोशन कर रहा है जस्ट लाइक ओलंपिक गेम में कोई जैसे वर्ल्ड में जाके इंडिया का नाम रोशन करता है इट इज जस्ट लाइक दैट कि ये ओलंपियाड एग्जाम में जाके मतलब पूरा असम का नाम रोशन किया है तो पूरे मीडिया को और पूरे सोसाइटी को इस मतलब इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए और हम लोग का टीम लालंस का टीम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है हम और मेरे साथ अक्षय सर हैं हम दोनों मिलके आरोहण को पूरा 4 साल गाइड किए हैं और जितना भी मतलब उसको सपोर्ट चाहिए हम लोग प्रोवाइड किए हैं निश्चित भावे আমি আৰোহণ হাজৰিকাক টাইমেটৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে অক্ষয় কুমাৰ এগৰাকী অধ্যাপক আৰু তেওঁ ফিজিক্সৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আৰোহণক আপুনি দীৰ্ঘ সময় গাইড কৰিছিল আজি আৰোহণ এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে কি ক'ব আপুনি
आरोहन को जब वो क्लास 9 में था तभी से हम लोग जानते हैं। हमारे जीएस रोड सेंटर पे क्लास करने आता था और क्लास 9 में जब कभी कभी सीनियर टीचर्स का क्लास लगता था तो हम लोग जाते थे उसका क्लास लेने के लिए। एंड मतलब आउट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स थे क्लास 9 में, उसमें से एक बच्चा ऐसा दिखा हमको कि मतलब वो डिफरेंट था सबसे। तो इसके ऊपर फिर मतलब ललन सर से भी बात हुई मेरी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को ग्रूम किया जाए, तो कुछ आगे चल के कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता है इसके थ्रू और मतलब असम का भी नाम रोशन हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने मतलब क्लास 10 में जैसे ही वो 9 पास करके क्लास 10 का रिजल्ट भी नहीं आया था, हम लोग मतलब उसको ग्रूमिंग में लग गया उसको। उसके बाद ये चलता रहा और मतलब क्लास 10 में ही जब वो था तो उसका करीब क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। जब वो क्लास 11 में गया 12 पास करके, तो क्लास 11 के एंड तक उसका 12 का सिलेबस खत्म हो चुका था और क्लास 12 में उसका पूरा रिवीजन चला। ऐसे करके वो लड़का क्या है कि बाकी बच्चे जो मतलब क्लास 11 में स्ट्रगल करते हैं सिलेबस को लेके, तो इसका मतलब बिल्कुल वो सारा चीज़ फेस करना ही नहीं पड़ा इसको। एज अ रिजल्ट ये लड़का मतलब बिल्कुल आगे निकलता चला गया। और आज जैसे ललन सर ने बताया कि एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है पूरा असम के, इनफैक्ट नॉट ओनली दिस ईयर, ये पूरा असम का हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा रिजल्ट मानते हैं हम लोग। पूरा असम में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बच्चा मतलब सबसे टफेस्ट ओलंपियाड में आता है IOQC और IOQP, और उसमें ही मेड अप पोजिशन फॉर हिमसेल्फ अमंग द नेशनल टॉपर्स। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात। ঠিক মই লালন কুমাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত। এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা হয়তো একমাত্ৰ অসমীয়া সন্তান বা একমাত্ৰ অসমৰ ল'ৰা যি ইমান ডাঙৰ এটা মানে সফলতা তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। खास करके मैं उनके आरोहन के पेरेंट्स को और मतलब बहुत बधाई देता हूँ, आरोहन को भी बहुत बधाई देता हूँ। अभी चूँकि JEE मेन का सेकंड फेज का एग्ज़ाम बाकी है और JEE एडवांस का भी एग्ज़ाम बाकी है, तो हम लोग उसको मतलब नहीं बुला पाए, लेकिन वो JEE एडवांस के एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ज़रूर आएगा। और हम लोग अभी उसको थ्रू आउट मतलब गाइड कर रहे हैं, कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और हम लोग बाकी स्टूडेंट भी, जैसे हम लोग एक स्टूडेंट कोचिंग के स्टूडेंट हैं, वो 7th रैंक लाए। आज हम लोग उसको भी फेलिसिटेट किया HS एग्ज़ाम में, वैभव सोनेवाल। वो हम लोग के पास JEE का तैयारी कर रहे थे, HS में उनका 7th रैंक आया। तो हम लोग स्टूडेंट को मतलब अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई चल रहा है। हाँ। तो उनको अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब इधर उधर ले जाके कोई उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। बट ऐसे हर स्टूडेंट के लिए हम लोग का पूरा बेस्ट विशेष है। और अभी चूंकि लास्ट टाइम है, अभी भी पूरा एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, तो दे हैव टू परफॉर्म। अभी नीट का एग्जाम 17 जुलाई को है, तो हम लोग पूरा हर स्टूडेंट को मतलब टेस्ट करवा रहे हैं, हर वीक टेस्ट करवा रहे हैं कि ये स्टूडेंट और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे और असम का नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो सिलेक्शन है वो एकदम किसी से पीछे ना रहे, किसी स्टेट से पीछे ना रहे। ঠিক মই অক্ষয় কুমাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে বহু সময় ধৰি পঢ়ুৱাই আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে JEE এডভান্স বা JEE পৰীক্ষা তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হৈছে। গতিকে JEE পৰীক্ষা খুবেই সমাগত, মাজত মাত্ৰ কেইটামানে, আৰু যিসকলে এইবাৰ HS পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ JEE পৰীক্ষা। গতিকে আপুনি এজন ফিজিক্সৰ অধ্যাপক হিচাপে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি JEE পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত কি ক'ব? কেনেধৰণে তেওঁলোকে পঢ়িব লাগে, কি কি বিষয়ত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে পঢ়াৰ প্ৰয়োজন, কি ক'ব? देखिए JEE एक मतलब टफ एग्ज़ाम है, ये कोई मतलब ऐसे ही हम झूठ नहीं बोल देंगे कि इजी एग्ज़ाम है। JEE एडवांस एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है जिसके प्रिपरेशन के लिए अगर आपको करंट में टॉप रैंक लाना है तो आपको मिनिमम क्लास 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहने के लिए 2 साल का प्रिपरेशन है, मतलब जो वास्टनेस है सिलेबस का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का, और कंपेयर टू अदर एग्जाम्स जैसे मेडिकल एग्जाम्स, अगर आप JEE एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4 गुना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका 4 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नीट एग्जाम। तो मतलब बहुत डेप्थ में आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा और मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आएगा आपका प्रिपरेशन में, है ना। रोलर कोस्टर राइड आपको मिलेगा अप डाउन, लेकिन आपको अपना मोमेंटम बना के रखना है कम से कम 2-3 साल तक। अगर वो बना के रखते हैं, अगर वो टीचर्स के सुनते हैं, अगर सही आपको जो गाइडेंस मिल रहा है तो गाइडेंस को फॉलो कीजिए, लगे रहिए, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगा, आपका परसेवरेंस बहुत मैटर करेगा, बुक्स का सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा। टीचर्स का और कोचिंग का ही सिलेक्शन नहीं, आपका बुक्स का सिलेक्शन का भी
सिलेक्शन भी बहुत मैटर करेगा। तो कोई मतलब स्टूडेंट बहुत अच्छा है, गाइडेंस उसको अच्छा नहीं मिला, बुक का सिलेक्शन उसका अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है बहुत अच्छा स्टूडेंट हो लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में आपको उसके पहले जेईई मेंस होता है, जेईई मेंस क्वालिफाइंग होता है, जो जिनको आईआईटी में सीरियसली जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जेईई मेंस क्वालिफाइंग होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं दे ऑल्सो टॉप जेईई मेंस एग्जाम। तो एक मतलब जो टॉपर्स हैं सारे स्कूल के पूरे इंडिया में ही, वो सब जेईई एडवांस के लिए आपको मिलेंगे प्रिपरेशन करते हुए। दिस इज द ट्रेंड जो हम लोग हर साल देखते हैं। तो कंपटीशन इज वेरी टफ, even though the number of students appear for NEET is 2 times greater, but the competition in JEE Advanced is very tough, क्योंकि जो भी क्रीम बच्चा है वो सब JEE Advanced की तरफ मतलब उस तरफ जाता है एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको मतलब बेटर होगा आप क्लास 10 से ही मतलब इसके लिए मोटिवेटेड हो जाए और प्रिपरेशन स्टार्ट करें जल्दी। ঠিক আছে মই লালন কুমাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। লালন্স কোচিঙৰ ফালৰ পৰা JEE পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ যিসকলে পৰীক্ষা দিব বিচাৰে, যিসকলে নীট দিব বিচাৰে, তেওঁলোকক কেনেকৈ গাইড কৰা হয়? हम लोग का मेन थीम होता है कि मतलब देखिए पढ़ाई जो स्टूडेंट करते हैं, मतलब पढ़ाई एक यदि सोचा जाए तो बहुत आसान चीज़ है। यदि किसी स्टूडेंट में कंसंट्रेशन है तो पढ़ाई बहुत आसान चीज़ है, लेकिन यदि किसी स्टूडेंट में डेविएशन है तो उसके लिए उसके बस का पढ़ाई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट को, चाहे JEE का स्टूडेंट हो, चाहे नीट का हो, इंजीनियरिंग का तैयारी करना हो, चाहे मेडिकल का करना हो, चाहे बोर्ड का करना हो, हम लोग हर स्टूडेंट को पहले कंसंट्रेट होना सिखाते हैं। जब हम लोग को क्लास में आते हैं तो हम लोग ये सिखाते हैं कि बच्चों कैसे आपको बोर्ड पे देखना है, कैसे आपको क्लास में हर चीज टीचर का सुनना है। हम लोग का डायलॉग रहता है क्लास में कि जब तक मेरी आवाजें आपके कानों तक जा रही हैं तब तक आपका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, कॉपी में नहीं लिखना है। क्योंकि बहुत सारा फैक्टर जो होता है वो स्टूडेंट के प्रिपरेशन में काम आता है, जो कि स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। तो हम लोग बहुत सारा ऐसा पॉइंट बताते हैं स्टूडेंट को, छोटा छोटा चीज, ऐसा नहीं कि कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके कोई टॉपर बनता है। हर छोटा छोटा चीज करके, छोटा छोटा क्वेश्चन करके ही कोई टॉपर बनता है। तो हम लोग हर स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि आप किसी से कम नहीं हो, बस एक रेगुलर और कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस एफर्ट दीजिए। आप अपना प्रीवियस हिस्ट्री छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज आप डिसाइड किए हैं उसमें रेगुलर आपका एफर्ट होना चाहिए, डेली आपका पढ़ाई होना चाहिए विदाउट एनी डेविएशन। आपके माइंड में दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। माइंड में यदि आप क्लास 10 पास किए हैं, एक बार डिसाइड कर लिए कि हमको आईआईटी करना है, तो आपको 24 आवर्स आपके माइंड में 24 आवर्स सिर्फ आईआईटी का प्रिपरेशन पे ही फोकस रहना चाहिए। दूसरा चीज आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको दिमाग में हमेशा वही चीज फोकस होना चाहिए। हम बहुत स्टूडेंट को देखते हैं दूसरों को दिखावा के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, आसपास के पड़ोसी को दिखाने के लिए, नेबर्स को दिखाने के लिए कि हम भी इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, हम भी मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, बट वो पढ़ाई कुछ नहीं करते हैं, बस दिखावा करते हैं। ऐसे स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि देखिए आप गलत नहीं है। मन एक ऐसा चीज है जिसपे यदि थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा मतलब उसको बोल दिया जाए, ऑर्डर दे दिया जाए कि नहीं पढ़ने के टाइम में हमको बस पढ़ना है, मोबाइल यूज नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, तो सिर्फ पढ़ाई करेगा। तो उस समय अपना विल पावर को हर स्टूडेंट को स्ट्रांग रखने के लिए हम लोग टिप्स देते हैं, कैसे आपको थ्रू आउट 8 आवर्स सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हैं। तो वो सब पॉइंट्स है जो कि स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाता है। और यही कारण है कि हम लोग प्राउडली बोलते हैं कि ललन्स कोचिंग क्लासेस, ललन्स इंटीग्रेटेड एकेडमी का सिलेक्शन रेट पूरा असम में आज से ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9 ईयर से सबसे अच्छा सिलेक्शन रेट है। जो भी हम लोग का स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं यहाँ से जानते हैं उस चीज को और अप्रिशिएट भी करते हैं, और हम लोग यही कोशिश आगे के फ्यूचर वाले स्टूडेंट में कर रहे हैं। ঠিক আছে, মই অক্ষয় কুমাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ আপুনি যিটো পাঠ্যক্ৰমত পঢ়ুৱাই আহিছে, দীৰ্ঘ সময় ধৰি আপুনি ফিজিক্স পঢ়ুৱাই আহিছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ লালন্স কোচিং? অকণমান যদি কয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग मतलब क्लासरूम भी हमारा सारे क्लासरूम्स में एसी है, और इंटीग्रेटेड का हमारा एक नया कैंपस भी स्टार्ट हुआ है भिटापड़ा सेंटर पे। वहाँ पर मतलब इवनिंग क्लासेस भी है,
उसके बाद रेसिडेंशियल कैंपस है हमारा बेटापाड़ा सेंटर, तो उसमें अगर स्टूडेंट वैसा हो तो अगर वहाँ पर एसी रूम का भी फैसिलिटी है हॉस्टल के अंदर, और बहुत अच्छा मतलब खाना वाना सारा कुछ मतलब बच्चों को मतलब फुल वहाँ पर फैसिलिटी है, पढ़ाई करने का बहुत बढ़िया माहौल है। सारे सीनियर टीचर्स वहाँ पे जाके क्लास लेते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ঠিক আছে, और মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ লালন কুমাৰ। আপোনাৰ যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে এই মুহূৰ্তত যিসকলে এইচএছ পাছ কৰিলে তেওঁলোকেতো বহুতে এতিয়া কোচিঙৰ কাৰণে এডমিশ্যন যদি ল'ব বিচাৰে, তেওঁলোকে আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ ক'ত ক'ত আছে আৰু এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব? हम लोग का मतलब असम में डिफरेंट ब्रांचेज है। मतलब गुवाहाटी में हम लोग का यहाँ पे जू रोड में है, भेतापारा में है, जीएस रोड में है, मालीगांव में है, सतगांव में है। और असम के बाहर गुवाहाटी के बाहर हम लोग का तेजपुर में है, नालवारी में है और शिवसागर में है। अभी रिसेंटली हम लोग 2 नया ब्रांच ओपन किए हैं। एक मतलब जो असम के बाहर स्टेट में ईटानगर में हम लोग ओपन किए हैं, और एक हम लोग का अभी कुछ दिनों में मतलब ओपन होने जा रहा है। हम लोग का असम स्टेट के बाहर भी एक ब्रांच है, नॉर्थ ईस्ट के बाहर एक धनबाद में हम लोग का ब्रांच है, जो कि हम लोग वहाँ पे ऑनलाइन वे से हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं रेगुलरली। तो स्टूडेंट कहीं भी किसी ब्रांच पे भी ले सकते हैं एडमिशन। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, हम लोग का पूरा हर ब्रांच का अलग अलग फैकल्टी टीम है। हम लोग पूरा एफर्ट देते हैं कि एज ए टीम हर स्टूडेंट में वही थीम जाए जो मतलब हम लोग यहाँ सेंट्रली बैठ के डिसाइड करते हैं, वही थीम सब जगह काम होता है। और स्कॉलरशिप व्यवस्था है? हाँ, हम लोग स्कॉलरशिप 2 टाइप के स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। एक तो वैसे स्टूडेंट जो बहुत ही मेरिटोरियस हैं और जिनका मतलब डेडिकेशन पावर बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। दूसरा वैसे स्टूडेंट जो मतलब फाइनेंशियली वीक हैं लेकिन किसी रीजन से उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है उनके, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। हम लोग का बस एक सिंगल लाइन रहता है कि यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। आप बस एक बार आके हम लोग से मिलो और बताओ अपना प्रॉब्लम, हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। मैं अक्षय कुमार আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰোঁ। যিসকলে এইবাৰ এইচএছ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কোচিং কৰিব বিচাৰে, গতিকে তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ মানে কি বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে, বা কোচিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকক কি ক'ব? देखिए, क्लास 10 के बाद जब बच्चे आते हैं हमारे पास तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं, हम लोग तो साइंस का ही मेन प्लेटफॉर्म है हमारा, इंजीनियरिंग और मेडिकल का। तो जो भी बच्चों का इंटरेस्ट है आगे जाके इंजीनियरिंग या मेडिकल का कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो उसको हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। और अगर मतलब बच्चा क्लास 10 में अच्छा, जैसे अभिलन सर ने बताया, अगर अच्छा बच्चा है उसका तो उसको क्लास 10 के रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, उसमें मतलब उसी के हिसाब से हम लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं, है ना। तो हमारे पास पूरा फैसिलिटी है। अगर HSLC में कोई बच्चा अगर टॉप 10 में आता है तो उसके लिए हमारे पास एकदम फ्री 100% स्कॉलरशिप है उसके लिए। तो मतलब हमारे तरफ से पूरा एफर्ट होता है कि कोई भी बच्चा हो, मतलब ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन उसका पढ़ाई पूरा ना हो पाए या उसको क्वालिटी एडुकेशन नहीं प्रोवाइड हो, तो उसके लिए हम लोग मतलब डेडिकेटेड रहते हैं। মানে যিসকলে নীট বা JEE কৰিব বিচাৰে, JEE তেওঁলোকে কোৱালিফাইড হ'ব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কোচিংটো কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপুনি কি ক'ব এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुद हम लोग आज के डेट में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एक समय हम लोग भी टीचर्स थे, तो जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो मतलब अच्छे टीचर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है पता है, मतलब बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को। क्लास में बच्चों को ये बताते हैं। जैसे केमिस्ट्री करके सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री में क्या है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना अच्छे टीचर के आप कर ही नहीं सकते हैं। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पे चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म बेस्ड है। अगर वो मैकेनिज्म आपको नहीं आता है, अगर आप नहीं सीखते हैं, आप कितना भी रट्टा मार लीजिए उसमें बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ फिजिक्स में है, फिजिक्स पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक कॉन्सेप्ट का दूसरे चैप्टर में यूज़ होगा एक के बाद, मतलब पूरा सीक्वेंस बेस्ड है। तो अगर आपको एक अच्छा टीचर मिलता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। अगर 2 बच्चा है, दोनों का सेम टैलेंट है, और एक को अगर अच्छा टीचर मिल गया, अच्छा गाइड मिल गया, अच्छा कोचिंग मिल गया, तो डेफिनेटली वो दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी आगे जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आरोहन हजारिका ही है, क्लास 9 में ही आया था हमारे पास, और डायरेक्ट ग्रूमिंग उसका सीनियर टीचर्स के साथ हुआ क्लास 10 से, जब वो 9 पास करके 10 में गया। आप यही मान के चलिए कि अगर उसका नहीं हो पाता ग्रूमिंग, तो ये जो वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, क्या वो कर पाता?
ये मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ असम। तो डेफिनेटली टीचर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके लाइफ में, इसलिए मतलब टीचर्स को बहुत ऊपर का दर्जा भी दिया जाता है। तो टीचर्स मैटर, ঠিক আছে टीचर्स मैटर करते हैं। হয় আমিও মানে যিসকলে এটা কোচিং কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে লালন কোচিঙৰ জৰিয়তে নিজক আগবঢ়াই নিব পাৰিব। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে তেওঁলোকক কি ধৰণে গাইড কৰা হয়, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিদৰে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব, সকলো কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে। আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে, আমি শেষত আমাৰ MD লালন কুমাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। যিসকলে এইবাৰ পাছ কৰিছে, HS পাছ কৰিছে, তেওঁলোকক আপুনি এটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী হিচাপে MD হিচাপে কি ক'ব? जो क्लास 10 पास किए हैं, और देखिए आपके सामने बहुत सारा चीज़ खुला हुआ है अभी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारा दरवाजा आपका बंद हो जाएगा। अभी सारा दरवाजा खुला हुआ है, आर्ट्स में आ जाओ, कॉमर्स में आ जाओ, साइंस में आ जाओ, सारा फील्ड खुला हुआ है, आपका इंटरेस्ट भी सारा खुला हुआ है। लेकिन अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन आपका हर दिन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, अभी से आपका हर दिन एग्जाम है। यदि आप ये चीज समझ जाते हैं तो आपका लाइफ बन जाएगा, चाहे आप आर्ट्स पढ़िए, चाहे कॉमर्स पढ़िए, चाहे साइंस पढ़िए। साइंस लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं? पहला चीज तो उनका एक इंटरेस्ट होता है, दूसरा चीज उनका एक होता है कि साइंस रिलेटिवली, जैसे कोई IIT कर जाता है, NIT कर जाता है, या मेडिकल क्वालिफाई कर जाता है, तो उसको बहुत ही कम एज में 18 ईयर में जैसे क्वालिफाई करता है, तो 22 ईयर 23 ईयर में उसको एक अच्छा सैलरी, 22 ईयर की एज में ही उसको अच्छा सैलरी, मोर देन एक्सपेक्टेशन मिलने लगता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम एक सोशल मीडिया पे देख रहे थे, 1.8 करोड़ का एक ऑफर मिला, मतलब फेसबुक में एक इंजीनियर को, तो बहुत कम एज में। तो ऐसा बहुत सारा आप सोशल मीडिया पे न्यूज देखते होंगे। तो साइंस लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें थोड़ा लॉजिकल होता है हर चीज, और हर चीज लॉजिक से कोरिलेट हो जाता है, प्लस कम टाइम में जल्दी आपको जॉब ऑप्शन क्रिएट करता है। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स खराब नहीं है, जिनका जिसमें इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट कीजिए, लेकिन हर दिन हर सेकंड को यूज कीजिए, डोंट मिस यूज इट। एक सिंगल वर्ड याद रखना है, डोंट मिस यूज योर एनी सेकंड। हर सेकंड काम करेंगे और वो अच्छे के लिए काम करेंगे, हर चीज पढ़ाई के लिए करेंगे, यही हर स्टूडेंट का थीम होना चाहिए। ঠিক আছে, মই দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি জনাইছে, আৰু যিসকল নতুনকৈ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে লালন কোচিঙৰ জৰিয়তে নিজক আগবঢ়াই নিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু দুয়োগৰাকী অতিথিক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু টাইম এটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই নেত্ৰজিৎ বৰাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।